Hello bachcho, nice to meet you again. I am Alok sir. Today I am going to debate about class 10th CBSE hard chapter. Okay. So in this video lectures we will be cover uh, our human respiratory system. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे बात किया था और उसमें बताया भी था बेटा कि जो हार्ट होता है वो क्या है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है। और इसमें ये बोले थे कि जो हार्ट है, ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को क्या करते हैं, आरिकल। अपर पार्ट इज नोन एज आरिकल and lower part is known as ventricle. What I'm saying, upper part is known as auricles and lower part is known as ventricle, right? So just yeah, auricle, upper part is known as auricle and lower part is known as ventricle. It is also divided a septum which name is a, इसको सेप्टम बोलते हैं। इस सेप्टम का क्या नाम है बेटा, मीडियम सेप्टर डिवाइडिंग वॉल, डिवाइडिंग वॉल के नाम से जान सकते हैं। डिवाइडिंग वॉल, जो डिवाइडिंग वॉल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्टम बोलते हैं। बट वी से दैट इट इज अ सेप्टम। सो देयर आर फोर चैम्बर इन द हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर हुए, देयर आर फोर चैम्बर विच दिस नेम इज राइट auricle. This chamber is known as left auricle. This chamber is known as right ventricle and this chamber is known as left ventricle. So there are four chamber. Okay. So first of all we have to define auricle. What is a auricle? Auricle क्या होता है, क्या आप जानते हैं auricle के बारे में? What you know about you? What, how can we define what is a auricle? Auricle क्या होता है? तो देखो बेटा, आर्टिकल्स को आप बोल सकते हो, ऑरिकल इज अ अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। ओके, ऑरिकल इज अ अपर पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू साइड, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। ओके, राइट ऑरिकल रिसीव deoxygenated blood, deoxygenated blood, and other side left auricle receive oxygenated blood, oxygenated blood, deoxygenated blood. Okay, so there are oxygenated and deoxygenated. So auricle is further divided, auricle is upper part of the heart, okay, which is further divided into two sides, right auricle and left auricle. Right auricle receive deoxygenated blood from superior and inferior vena cava, superior and inferior vena cava। यहाँ आप देख सकते हो बेटा, जो राइट ऑरिकल है और जो लेफ्ट ऑरिकल है, तो इसमें this part is known as right auricle, this part is known as left auricle. Right auricle receive deoxygenated blood from superior vena cava and inferior vena cava. Okay, left auricle receive oxygenated blood through the pulmonary vein, ठीक है, and both from the both lungs, left and right lungs. okay, वही हम बात करें तो जो राइट ऑरिकल है ये पंप करता है ब्लड को किसमें, राइट वेंट्रिकल में, एंड it pump the deoxygenated blood into the right ventricle. Left auricle pump the blood, oxygenated blood into the left ventricle, right? So what is a ventricle? Ventricle क्या होगा, तो ventricle is a lower part of the heart. Ventricle is a lower part of the heart. It is also divided into two sides, right ventricle and left ventricle. What I'm saying, right ventricle and left ventricle. So can you tell me which one receive deoxygenated blood and which one receive oxygenated blood? So देखिए यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है
ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood received by right ventricle from right auricle, okay, and oxygenated blood received by left ventricle through the bicapsid valve from the left auricle, and it pump the blood all part of the body through the aorta, and it pump the blood to lungs by the pulmonary arteries. सो देयर आर टू टाइप ऑफ, हमने क्या बताया आपको, हार्ट को दो दो पार्ट में बांटा गया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को आर्टिकल बोलते हैं, लोअर पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अपर पार्ट दो साइड में डिवाइड हुआ, किसके वजह से, सेप्टम की वजह से, राइट आर्टिकल एंड लेफ्ट आर्टिकल में। सिमिलरली इसी तरह वेंट्रिकल भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लोअर पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं, ये टू पार्ट में ये भी डिवाइड होता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में, ठीक है। जो राइट आर्टिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, जो लेफ्ट आर्टिकल है वो, सॉरी, जो राइट आर्टिकल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, जो लेफ्ट आर्टिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। सिमिलरली वेंट्रिकल में जाएं तो वेंट्रिकल का जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है ट्राइकैप्सिड वॉल से एंड फ्रॉम द राइट आर्टिकल से। एंड वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो ये भी ब्लड रिसीव कर रहा है कहाँ से, लेफ्ट लेफ्ट आर्टिकल से एंड थ्रू द ट्राइकैप्सिड वॉल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आई होप ये समझ में आया होगा। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से वॉल्व्स इस हार्ट में आपको मिलते हैं। तो हार्ट में हमने बताया था देयर आर 4 वॉल्व्स आर इन्वॉल्व। कितने वॉल्व्स हैं, 4। हार्ट में कितने वॉल्व्स होते हैं, तो देयर आर 4 वॉल्व्स इन द हार्ट। कौन कौन से, तो पहला है बेटा ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड वॉल्व। सेकेंड है बाइकैप्सिड वॉल्व। थर्ड है एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व। देखिए सेमिलुनर दोनों होगा, वॉल एक एरोटिक हो जाएगा, अरोटा के एरोटिक, दिख नहीं रहा होगा, एरोटिक वॉल। दो वॉल्स होते हैं बेटा, सेमिलुनर वॉल में दो तरह के वॉल्स हो गए, कौन कौन से, एक ट्राइकैप्सिड बताया, एक बाइकैप्सिड हो गया, ठीक है, बाइकैप्सिड वॉल, ट्राइकैप्सिड वॉल। एंड उसी तरह एक आपको सेमिलुनर वॉल मिलेगा। सेमिलुनर वॉल जो है वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एरोटिक सेमिलुनर वॉल एंड पल्मोनरी पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपको हार्ट में क्या पढ़ना होगा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के बारे में अगर हम बताएं, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के बारे में आप क्या समझते हैं, तो सुपीरियर वेना केवा को ऑल्सो कहा जाता है एंटीरियर वेना केवा, इसको अंदर नेम है एंटीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऑल्सो नोन एज एंटीरियर वेना केवा, जिसको जो क्या काम करता है, व्हाट ही डू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा, तो it carries deoxygenated blood, ये क्या कैरी करता है, deoxygenated blood from the upper half of the body, कहां से, अपर पार्ट से, from the upper half of the body, upper half of the body, and include, जिसमें क्या, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या क्या मिलेगा, हेड है, चेस्ट है एंड आर्म्स है बेटा,
एंड टू द हार्ट राइट आर्टरी। ठीक है, यहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना केवा रिसीव करती है। तो सिमिलरली हार्ट में इंफीरियर वेना केवा भी है जो लोअर साइड में है। तो इंफीरियर वेना केवा क्या करेगी, इंफीरियर वेना केवा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा? ठीक है, इसको पोस्टरेट वेन्स भी पोस्टरेट वेना केवा भी बोलते हैं। इसका अंदर नेम अगर आप जानना चाहते हो तो आप राइट करो पोस्टरेट, क्या बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर वेना केवा। इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर वेना केवा। पोस्टीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो आप बोलोगे इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड blood from the lower part of the body। बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब को कैरी करता है, जैसे कि लेग्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा हो गए। उसके बाद आता है बेटा लीविंग द हार्ट, मतलब पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा, फिर कोरिनियल आर्टरी से जो हार्ट पल्मोनरी आर्टरी से क्या करता है कि अराइज फ्रॉम द वेंट्रिकल, मतलब ये कहाँ से राइज होता है, वेंट्रिकल से राइज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, और वो पंप को ब्लड को क्या करता है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, इसी तरह राइट आप राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स में, और अरोटा क्या करता है, ये भी पंप करता है ब्लड को। फंक्शन ऑफ द हार्ट की बात करें बेटा, तो इसमें आप समझ सकते हो कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए अभी बताया सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आते हैं पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी से, एंड ट्राई कैप्सिड वॉल से ये इंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड को क्या करता है, पल्म देखिए जो वॉल्व है वहां से सिर्फ ब्लड एक बार इंटर करेगा, फिर रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, किसी भी वॉल से ब्लड रिवर्स नहीं जाता है, तो एक बार इंटर कर गया तो फिर वो बैक नहीं जाएगा। तो इसी तरह फिर यहाँ जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा तो ट्राई कैप्सिड जो पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, सेमुलर पल्मोनरी सेमुलर वॉल है, वहां से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा करके ये दोनों लंग्स में, एक राइट और एक लेफ्ट लंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां से जब ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है O2, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है फिर वो पल्मोनरी वेन से, ठीक है, तो राइट वाले से राइट से आएगा, लेफ्ट वाले से लेफ्ट, पल्मोनरी वेन से दोनों जाके राइट लेफ्ट ऑरिकल्स में भरते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल्स में, और वहां से ब्लड ट्राई कैप्सिड वॉल से कौन सा चेंबर में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल अटैच होता है अरोटिक वॉल से, जो अरोटा में जाके ओपन होती है। तो जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को अरोटा में सेंड करता है, और अरोटा पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आर्टरी के थ्रू पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में फैला देता है। तो इसके बेसिस पे जो सर्कुलेशन हुआ वो दो तरह का सर्कुलेशन हुआ। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन। कौन कौन से सर्कुलेशन हो गए बेटा, इस तरीके से, तो एक हार्ट टू लंग्स हो रहा है, और हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी हो रहा है। तो आप बोल सकते हो जो हार्ट टू लंग्स हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, और जो लंग्स टू हार्ट रहा है उसको क्या बोलेंगे। तो जो हार्ट टू लंग्स हो रहा है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड जो सर्कुलेशन हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेट सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अगर इसका हम स्क्रेचिंग ग्राफ दिखाएं आपको, तो आप ये बनाओगे, जैसे कि आप मान लो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड राइट ऑरिकल, मतलब हमारा ये हार्ट है। ठीक है, और इसमें बेटा आप समझ जाओ
लेफ्ट, ये रहा, ये पॉइंट हो गया राइट ऑरिकल, ये पॉइंट हो गया पल्मोनरी आर्टरी जो आ रही है। अच्छा रुको, इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको, इजी गोइंग में। हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया राइट आर्टिकल, ओके। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है कहाँ पे बेटा, राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल में, ओके। और यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स को जा रहा है, ठीक है। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है। और लंग से जब ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, ये आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग, ऑल बॉडी पार्ट, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑल बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल्स में ब्लड आने लगते हैं, ठीक है। तो देखो, जो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरिकल तक जाना आना, ये पूरा सिस्टम हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये जो पार्ट है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट आर्टिकल से पूरा ये जो सर्कल बनाएगा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो आप यहाँ पे बता रहे थे कि इंफीरियर से ये पूरे बॉडी से निकल के आया, ये ब्लड लेके आया हार्ट तक, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। अरोटा लेके पूरे बॉडी में गया और वहां से इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में ले आया। ये इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स को दे रही है, और लंग्स से पल्मोनरी वेन से जो हार्ट में आ रहा है, इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं कि जो सर्कु ये डबल सर्कुलेशन तो आपको आ गया होगा, तो डिफ्रेंशिएट की बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो आप देखोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो शॉर्ट सर्कुलेशन है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, ये टाइम टेकन कम है, शॉर्ट टाइम पीरियड। और जो आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है ये लार्जर है, लार्जर सर्कुलेशन के नाम से जाना जाएगा, शॉर्ट सर्कुलेशन, लार्जर सर्कुलेशन। वहीं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, हार्ट और लंग्स के बीच में पाया जाता है। इट अकर बिटवीन, पल्मोनरी सर्कुलेशन अकर बिटवीन हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। तो हम बोल सकते हैं लंग्स, हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स। वही हम बात करें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अकर बिटवीन, किसके बीच में पाया जाएगा, इट अकर बिटवीन हार्ट, हार्ट टू हार्ट एंड ऑल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट एंड ऑल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में पाया जाता है। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो इट पंप द
इट पंप द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड रिसीव द लेफ्ट पार्ट। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है एंड लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। वहीं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में देखा जाए तो राइट पार्ट जो लेफ्ट पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है एंड राइट पार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करता है। सो अगर बात करें कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है तो इसमें ये हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के सप्लाई करता है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हार्ट के अंदर किसकी सप्लाई होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस कोई अगर लेक्चर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल मेक यू अगेन टू अवेयर। थैंक यू फॉर व्यूइंग।